So I just calculated what we do all through our life, okay, like especially daily life, what we do. So in my calculation, it come we do two things altogether. First, we settled our fear, or we try to do something that make us happy. Okay, if you calculate, it will come to you. Either you are settling your fear, or you are doing something that make you happy. Now everything comes into that. WhatsApp left 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, no problem. Now uh, ha- when you take the mobile and use mobile, TV, song, comedy, serial, then film, then some people eat gutka, some people drink wine, and some people eat some special food. Then some people have storybook, then playing game and having somebody special like girlfriend, boyfriend, some religion. All these things we do so that we would make ourselves happy. Okay, now just simple logic, we are eating every day. Okay, we are eating. Why you want to make happy? We want to eat because your stomach is getting hungry. If stomach is hungry, you won't get happy. Okay, so you have to get the completeness, fulfillness, so you have to fill your stomach, so you are doing it. Okay, then basic survival skill. You are thirsty. When you are thirsty, you are not happy. Okay, so you have to drink it, so you are drinking, so you will be happy. Or something like uh, you are studying. Okay, now if you study, you will say that yeah, I'm doing for this that, but you study mainly because you are afraid of your life. That is what you study, nothing else. Okay, you are afraid that if you don't study, you won't get job. You won't get job, you won't get money. You won't get money, you won't get a good girl or boy. Okay, and then you will struggle all through your life. You won't get a government job. That's all. So you are studying, like you are studying. So that is what we do. Basic things I'm telling. There are many other things. Okay, like some people they will morning. This is some extreme level. Okay, some people wake up and directly they go to the ritual. Ritual, you know, ritual. Those things are connected. Those behavior or act related to religion. Okay, like सूर्य प्रणाम करना, कोई कुछ लोग दुआ भी करता है उस मीन्स फॉर दैट पर्पस. Actually you are afraid. Okay, actually you are afraid of your life, and that is what you may pray, or you may go for surya pranam, and you may go for arti and this and that. All those things are there. Yeah, there is a good reason. I also say you should pray morning time, but I didn't say that because you are afraid you do that. Okay, that's for other another reason I say. Okay, but some people do because they are afraid. They will wear cloth also because they are afraid. They are afraid of society. They will, that is what they will wear cloth. Yeah, like this Bikram, he is wearing a jacket and he is wearing a shirt. Vikram, can you wear a dress that like Susma ma'am I can see, or yeah, Susma ma'am I see a lady's dress that is model for some girls. Can you wear it? No, sir. No, sir, no. Why? Because you are afraid of society. What they will say? They will laugh at you. Yeah, that is also. Yeah, similarly, girls, you guys also will feel a little bit odd if you are wearing something that is belong to boys. So most of the things we are trying to do, either we are trying to settle our fear or we are trying to make ourselves happy. So uh, our life is struggle between these two. Okay, and we are struggling all through the day. Okay, you, me, and all. Now happiness is there. Now I was dealing about fear. I said because on the second chapter, ninth point, there is telling you should not think, or you should not keep yourself in fear, in ignorance, or in superstition. So these 3 points I will explain today. Fear. What is fear? Fear is a negative feeling. Okay, that we cannot control, a situation that is going to harm us. That's fear. Okay, it's negative feeling beyond our control, that we know that we cannot control it and that is surely going to harm us.
Okay, that we think that it is true or not, but you think it. And there are many kinds of fear, and most of the fear we are afraid of, they are learned fear mainly. There are two kinds of fear: learned and unlearned. Yesterday I told these things, those were here. Learned and unlearned. Now most of the fear, we just think that we are unlearned. Naturally it comes. It's not natural. Okay, it's unnatural. You were taught. Children are not afraid of many things that you and me are afraid of. Okay, I also was seeing one, like children, you can say, one child, and they are not so afraid. They are so always active, and their mind works in different way. Okay, but you, me, are very conservative. How I will wear it, my cap, this one is little bit side, so I have to keep like this in the middle, or I have to keep it like this, or I have to wear like this. But for children, you think about all these things. They want play, man. They will go and play. Okay, and whatever it is, they want entertainment. They will make it, even though you do like it or not, because they are children. Now, uh, fear, mostly I'm telling those who are learned fear. Okay, I'm telling the learned fear. Learned fear means fear will increase as your days are, you are getting older, your this fear will get increase. Okay, as you get older, these fears will increase. First, fear of tomorrow. Okay, many people say about, talk about that fear of tomorrow. Like tomorrow what will happen? Fear of tomorrow, no, tomorrow where I will be, that is a tension, man, and that tension is always eating up. Because tomorrow means not specifically tomorrow, it's about after 1 week, 1 month, 1 year, or 2 year, or 10 year. That is called fear of tomorrow. After 10 year I will get government job or not. After the 6 month I will get pass marks or not. Fear of tomorrow, and it increases. Okay, if you are not careful of, it will increase. Fear of destiny, it is a learned fear. Anyhow, you guys don't think about that apart from one person here. Okay, this is a learned fear, and it mostly connected with the religion. Learned fear of destiny, or after death. What will happen after death? You guys don't care, I know. Okay, usually youth people, children, they don't care about all that. They want enjoyment, live life. Okay, this is the learned fear. As you are getting older, you will think about that. Okay, but these are unnecessary only. Then fear of daily need, survival. Okay, for others it will be old, because yesterday I said fear of daily need. What I will eat, what I'm going to do next, so how I'm going to survive all through the day. So this survival mode is there in our mind. We always try to, there's a tendency to think, and as you grow older, it's there. Like especially for boys it is more, because we try to carry the responsibility of family, and we try to provide for family. So it is the big responsibility for us. And for girls also it is not less. If girls are thinking, it is not secure, and they will have all kind of thought. Okay, for girls mindset is, yeah, they have, you guys need to see that something is there, either my in my account is there, or my dad is there, or my husband is there, all the, yeah, no married girl. So somebody is having something, you need security. If security is missing, okay, your mind will start trembling. Okay, it will just sick. Then fear of society, as I said to Bikram, he cannot exchange the wear with the girls, exchange the cloth with girls' cloth, and he cannot speak certain thing in public also. Like he cannot speak English in Bengal. If he said publicly in tea shop, brother, can you give me a cup of tea? There's English का बोला. These things happen. Okay, fear of society, it increases. Now it is there in your choice, you can decrease it too. Now fear of failure, rejection, standing alone or no. Like if you try to choose something, okay, you will be alone. Like all here, almost all people are here. Okay, all people, you do some things. Okay, but here I am here. Okay, and along with me I think Susma. Okay, we don't do certain thing. Okay, and almost all three, whoever 1 2 3 4 5 6 7 8 9 people are here, you all guys do the same thing. We don't do it.
okay, and purposefully we don't do, okay, especially I don't do it, okay. We less, I'll not say what is the particular, otherwise you guys will feel hurt, but we don't do it, okay, because it's not that we don't like it, but we don't want to follow with the trend, because that trend, I don't know, simply came, okay, from somewhere, so I don't want to follow that. So I see, even though we are not doing it, I am not afraid to stand alone. I know, because all the people they are doing it, and I am telling that I don't do. It is also a choice, like if Pallavi and Smriti and Jyotimukhi is telling we don't have Facebook account. All people have Facebook account, you guys don't have Facebook. Like it's a very difficult task, but sometimes having is good. But if you don't have also, you need to stand firm. Okay, I don't have, no problem. Okay, other people have, I don't have, it's okay. All people are using mobile, I don't have mobile. Like Pallavi said, I am using, you may have using your parents' mobile. That's okay, fine. Okay, you can stand alone, no problem. But this is afraid that all people are doing something I am not doing, I will be left out. Learn fear. Okay, and there are learn fear like dark fear, afraid of darkness, spirit, dushta atma, then bhoot, okay, then spider, then a religion. अरे ये मत खा, वो मत कर, इसको मत छू, वो मत कर. So these things your religion will tell us. Then fear of boss. If you have a boss, you will be boss is coming, boss. Or if you have a school teacher, principal. So this is also a kind of fear, okay, and it is learned fear, because you know he or she is boss or your teacher, than you just otherwise, who cares. Then fear of dawn, if you have any in your place, this is irregular, okay. And then fear of God is okay, okay. Fear of God, I just sometimes get afraid of that, otherwise I don't care other people. So but many people they tell you to fear, the see, fear of religion and fear of God is different, okay. God doesn't come on your back with a stick, but religion will come. You don't obey religion, they will kill you, man. If you want to try it, don't give the chanda, okay. They ask not chanda. Don't give chanda, you will face it. But God has nothing to do with that chanda, okay. But if you don't give, then they will kill you, man. Especially if those who are asking, they are your friend, they will not leave you. Then fear of parents. Yeah, we all are afraid of our parents, but some people are extraordinarily afraid, okay. Like बाप नहीं है, शेर है भाई, आके खा जाएगा. Not like that, okay. Then fear of getting ahead, like we want to go ahead of our life, we are afraid of, we are not going. See, this topic is very big, I am just scratching the surface only. Then fear of uncertainty, we all have, okay, we all have fear of uncertainty. Then there is something natural, okay, these are learned fear. You are learning these things, you are getting, there are some natural fear, okay. Like if somebody is coming and shouting on before your, oh, so you say, oh. So that's natural, man. It is not learned, and it happened with all type of animal. Or you suddenly saw something like a rope on the dark, okay, unexpectedly. Or you touch something, or you eat something, or you smell something. So all these things suddenly, if something happen, then you get afraid. So those are natural, but the other one which I said first, they are unnatural. Now if you are afraid, your mind will stop thinking. एफ्रेड ऑफ, आप अगर किसी भी चीज से डर रहे हो, तो पक्का बात है, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, ओके। ये स्मृति जो उसका कमिंग लाइफ हो सकता है, या तो भूत भूत प्रेत से अगर कभी डरती है, डरते हैं ना स्मृति, कैमरा बंद मत करो, नहीं डरते हैं ना, या यू आर, आप डरते हो, मैं बोल रहा हूँ आप डरते हो, या पता नहीं, मुझे तो लगता तो है, लग तो रहा है, ओके. सो नो सर, नहीं सर. या सो दैट्स द थिंग. सो आप अगर जब हम लोग डरते हैं, तब क्या होता है, हमारा
माइंड काम करना बंद कर देता है। और उसी डर को लेके हम जब पढ़ने बैठेंगे तो पक्का जाहिर सी बोल रहा हूँ आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को 1 घंटे का पढ़ाई आपको 10 घंटा करना पड़ता है। एक किताब को लेके 1 साल घसीटना पड़ता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, डरते हो खाली। ठीक है, आप अगर उस डर को हटा के पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका ब्रेन उसको कैच करना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं उस दिन बोला था रोशनी, तो थोड़ा सा हैरान हो गया कि मेरा फोन नंबर मैं एक बार बोलूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा है ना। लेकिन आपका फेवरेट हीरो बॉलीवुड का स्टार सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन हो या तो दीपिका पादुकोण हो, कोई भी है, वो अगर उसका फोन नंबर एक बार बोल देता है अपना मुंह से, तो पूरा का पूरा सेंसेस खड़ा हो जाएगा और आधा नींद में रोते रोते तो खचाक से हाँ सपना देख पाई। कैपेसिटी है आपके अंदर, कौन बोलता है कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी आपके अंदर है, लेकिन उस कैपेसिटी को एक्टिवेट करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग ना हमारा ब्रेन का थोड़ा चीज ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 5 या 10%, बाकी इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग भूल जाते हैं, एक 4-5 फोन नंबर याद नहीं कर पाते हैं। But we have capacity to do that. How we have to activate it? If you activate now, if you are afraid or ashamed, then you are stuck. You have to overcome some things, and then you have to experience it, and then you will get it. Now, ये अगर समस्या है, डर है, तो डर को ओवरकम कैसे करें? ये अगर डर है तो बोलोगे शायद डर हो तो बोल दिया, अभी डर को क्या करें? देखो, डर को भगाने का बहुत बड़ा चीज है कि कुछ चीज मैं लिख के रखा हूँ। जस्ट स्टिल रिलैक्स इमेजिनिंग यू हैव ओवरकम द थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ। ओके, पहला चीज आप ये कर सकते हो, आपको किसी भी चीज पे अगर डर लगता है तो कुछ भी हो, ठीक है, पहले है ये है, अपने आप को पकड़ लो, रिलैक्स हो जाओ। मेरा लैपटॉप चार्ज खत्म हो गया। ओके, क्या होता है, सुना दे रहा ना मेरा आवाज? यस सर। ओके, तो यस सर। अगर किसी चीज से डरते हो पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। आप अगर डरते हो, बैकग्राउंड साउंड इसका नहीं है, आप अगर डरते हो तभी आपका डर वो काम करेगा, आप अगर नहीं डरते हो तो वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ओके ना, तो ये डर के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा 5 मिनट ये प्रोग्राम में एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बोल के ही छोड़ूंगा, ठीक है। एक मिनट, आई होप साउंड एंड वीडियो या। अगर डरते हो तो क्या करना है आपको, आपको उसके बारे में इमेजिन करना है, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स करो और मन ही मन में सोचो कि वो चला गया है, मन ही मन में सोचना है चला गया है। आपको अगर स्टेज फियर होता है, आप अगर ऐसे ही सोच लो, इंग्लिश बोलने के लिए घबराहट होता है, ठीक है, डर लगता है, तो एक काम करो ना, मन में ऐसे सोचो कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मन में सोचने से लिए क्या जाता है, सपना देखो कभी कभार, दिन में रात में देखो, डर चला जाएगा। दूसरा तरीका है, काउंटर अटैक द फियर सजेशन विद द ऑपोजिट। ओके, आपको जिस चीज के डरते हो उसका उल्टा चीज को लेके उस डर को अटैक करना है। कैसे? आप अगर किसी चीज से डरते हो, जैसे आपको अपना फ्यूचर से डर है, आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप अपने आप को बोलो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है और मैं उसको पाने जा रहा हूँ। ना नेगेटिव कमेंट नहीं देना है आपका दिमाग को, मैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट इट। ओके, मैं जाके उसको पकड़ने वाला हूँ। ओके, वो मेरे हाथ में ही है, खाली उतना दूर जाना है। नेगेटिवली नहीं बोलना, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोलना है। ओके, और भी अगर कोई चीज़ है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं एक दो ही दे रहा हूँ। मतलब आपको अगर डर लगता है कि लोग हमको क्या बोलेगा, अच्छा बोले बुरा बोले, तो भाई जो भी है हम सही है, ठीक है ना। आई एम ब्यूटीफुल। ओके, लोग मुझे अच्छा ही बोलते हैं, लोग कितना भी बुरा बोल ले फिर भी हमको अच्छा ही बोलता है। सो
और अपने आप को बोलते रहो उसको, बुरा नहीं है बोलने में, ठीक है। नेगेटिव कमेंट देने से अच्छा है कुछ पॉजिटिव कमेंट दे दो अपने आप को, सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके। और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओके, और एक तो है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता है उसको, ठीक है। मतलब इसको आप बोल सकते हो डर के आगे जीत है, हमको बोलते हैं ना, है डर के आगे जीत है। एक्चुअली आप जिस चीज को ले डरते हो ना, है उसके अंदर ही आपका ताकत छुपा हुआ है। आप अगर किसी चीज को डरते हो तो उसके अंदर आपका जो ताकत है उसको छुपा हुआ है। जितना बड़ा डर को आप पार करके जाओगे उतना बड़ा बनोगे। आपको मतलब ऊंचाई से डर लगता है ना, लेकिन ऊंचाई में जाके अगर मैनेज कर ले पाते हो, ऊंचाई में जाने के लिए डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको जाने का इच्छा है उधर, तभी डर लगता है। अगर किसी को जाने की इच्छा नहीं है उसको डर कैसे लगेगा? ऊंचाई में जब उठोगे तभी नहीं लगेगा, मतलब आपके अंदर इच्छा है उधर जाने का, तो भाई इच्छा को पूरा करना। और इधर अगर पहुंच गया और डर तो चला गया, मतलब आपका ताकत उसके अंदर ही है, उस डर के अंदर आपका ताकत है। आपको अगर लगता है फेल हो जाएंगे तो उसका मतलब यह है आपके पास पास होने का इच्छा है, पास होने का कैपेसिटी भी है। ओके। आपको अगर लगता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले नहीं, नहीं मिलेगा, उसका मतलब आपको मिलने का इच्छा है, तो भाई पार कर लो। ताकत उसके अंदर ही है जिस चीज से डरते हो। ओके, डरना नहीं है। डरना छोड़ के और एक चीज उधर बोला गया है, इग्नोरेंस। ओके, जिसको हमारा फैमिली, हमारा गवर्नमेंट, हमारा रिलीजियन सब लोग फीड करता है। फीड करना मतलब खिलाता है। इग्नोरेंस मतलब उसको क्या बोलता है? हिंदी में बात कर रहे हैं। इग्नोरेंस मीन्स समथिंग दैट यू आर जस्ट नॉट केयरफुल ऑफ, यू जस्ट ट्राइंग टू पुश इट असाइड। कुछ चीज जिसको आप नकारते हो उसको बोलता है इग्नोरेंस। अभी देखो, नजरअंदाज करना। हाँ, नजरअंदाज करना। हम लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। देखो हम सभी भारतीय है ना, सबके पास आधार कार्ड है ना, पता है ना? यस सर। अभी कोई बता सकता है किसको भारत का जितना आइन कानून है, किसी को पता है कि भारत के आइन कानून के बारे में? नहीं पता है ना। ये एक मोबाइल, क्या? भारत का आइन कानून के बारे में पता है आपको? किसी को पता है? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, भारत का संविधान को कोई पढ़े है आप लोग? आप लोगों में से कोई यस सर। पढ़े हैं? ओनली यस फ्यू। सर। नहीं पढ़े हैं सर। पढ़े हैं? यस यस सर। सर। बहन बोल रहे हैं कि पढ़े हैं। सारे बहन एग्जाम देने के लिए पढ़े हैं कि दूसरा किस चीज के बारे में? सब्जेक्ट में पढ़े हैं। वो तो एग्जाम देने के लिए पढ़े हैं, है ना? क्वालिटी में सर। हमको पता है। तो बाद में ये बोल रहा हूँ, यस। अगर मैं मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन हमको अगर पता ही नहीं है मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एक लाइसेंस अगर दे दिया जाता है हमको मोबाइल चलाना आता है, तो कैसा होगा? इग्नोरेंस। हम लोग एक देश में जीते हैं जिस देश में हम लोग को आईडी कार्ड दिया जाता है, तुम लोग इस देश में एक सच्चा नागरिक हो, इस देश में जी सकते हो, ठीक है, अपना जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन उस देश का आइन कानून के बारे में हमको कुछ बताया नहीं जाता है। यह आपका एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन, इसका फॉल्ट है। और आपको जो सिखाया गया है उसको एग्जाम में पास होने के लिए, उसको आपको जीने के लिए नहीं बोला गया है ना। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? आपको पता नहीं है, आपको लाइसेंस दे दिया है, ठीक है, इसके बारे में क्या है पता नहीं है, लेकिन इसका अगर कुछ भी एक लॉ अगर आप तोड़े ना तो आपको जेल के अंदर डाल देगा, पता है? आप संविधान के खिलाफ अगर थोड़ा सा भी गए तो आपको क्या जेल में डाल देगा। लेकिन दुख की बात यह है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ने, हमारा भारत का निकम्मा सरकार जो है, ठीक है, हमको एक बार भी सिखाया है? मुझे तो नहीं सिखाया अभी तक। उसके लिए अलग से सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ता है। तो यार
और जो सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ता है उसका क्या। और अगर सब्जेक्ट लेके पढ़ भी लेता है हो तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, उसको थोड़ी ना पता रहता है कौन सा क्या बोलता है पार्ट में कौन सा क्या क्या लॉ आइन का राइट हमारे लिए है, नहीं पता है। ये इग्नोरेंस बोलते हैं, हमारा नेशनल जो फील्ड है उसमें हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी समझना चाहिए। हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंस, इग्नोरेंस देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का मकसद जो मेन है वो क्या है, हमारा लाइफ को हम कैसे आगे बढ़ाए, ना कि हम पढ़ाई करके पास मार्क्स मिल के डिग्री को लेके डिग्री को बेच के नौकरी लेके नौकरी को लेकर अपना जिंदगी जीना है, ऐसा नहीं। हमारा लाइफ कैसा होगा, और बात अगर पैसे का होता है, पैसा तो लोग कैसे भी करके कमा सकते हैं। आज लोगों को क्या होता है अपना जिंदगी के बारे में पता नहीं, इसीलिए गंदगी, करप्शन, पोल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि अनपढ़ जाहिल गवार लोग हर जगह में घूमता रहता है। और ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग सबसे ज्यादा आपको मिलेगा शहर के अंदर। पोल्यूशन, करप्शन और शहर में ज्यादा मिलेगा, गांव में नहीं। गांव का लोग बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी उन लोगों का दिमाग में उतना टेढ़ा मेढ़ा चीज नहीं घुसता है, बहुत अच्छा रहता है, सीधा साधा रहता है। और गांव में जाओगे तो माँ बाप को वो लोग नहीं छोड़ता है, लेकिन शहर में जाओगे तो माँ बाप को छोड़ देता है। शहर में ही वृद्धाश्रम वगैरह रहता है, मतलब ओल्ड एज हाउस, ऑर्फेनेज, छोड़ाज वगैरह, ये वो। गाँव में वो सब नहीं होता है। मतलब जो लोग ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो लोग समझते कहाँ पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहे, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया। ये हमको नहीं सिखाता है, कभी सवाल करने के लिए नहीं बोलता है। दे आर फीडिंग इग्नोरेंस एंड यू मस्ट बी इग्नोरेंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आप अगर इग्नोरेंट बन के रहोगे तो आपसे पैसा कमा सकेगा ना आपका। आप जितना नकारते रहोगे उतना आपसे पैसा कमाते रहेगा। ओके, दिस इज सेकेंड इग्नोरेंस। थर्ड इज सुपरस्टिशियस बिलीफ। जब आज बात कर रहे थे कुछ लोगों से, हम चार पांच भाई मिलके, हमारा भारत में जात पात का कितना, अब पता नहीं, आप अगर कुछ कोई अगर विश्वास करते हो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम इंसान है ना, मतलब अगर बोला जाए तो सर्वश्रेष्ठ जीव है। और इंसान को छोड़ कोई दूसरा ऐसा जानवर नहीं है जो अपने में भेदभाव करता है। लेकिन हम लोगों को देखो यार, कलर से लेके स्टार्ट करें, कलर से भेदभाव करना स्टार्ट, ऊपर से क्या, कैसे शकल सूरत है उसके ऊपर भेदभाव करना, ये बाल सफेद है कि काला है उसके ऊपर करेगा, उसके बाद जात पात को लेकर करेगा, कौन कौन सा जगह में पैदा हुआ है उसके ऊपर करेगा। इसको आइडिया कहाँ से मिल रहा है, इसको एक जगह है उधर से मिल रहा है। ये सब अगर आप चेक करोगे तो क्लोजली कनेक्टेड है कोई ना कोई धर्म से, क्लोजली कनेक्टेड है। ये सुपरस्टिशियस बिलीफ, जैसे हम उस दिन कुछ उदाहरण दे रहे थे, किसी को याद है कुछ उदाहरण दे रहे थे सुपरस्टिशियस बिलीफ का, क्या हो गया शालिनी? मेरा लेक्चर सुन के वोमिटिंग लग रहा है कि सच में कोई सब समस्या है, तबीयत खराब है? नहीं, अगर तकलीफ है तो जा सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग करके इसको डाल दूंगा, आप देख लेना बाकी का हिस्सा जो अगर अच्छा लगे तो। सुपरस्टिशियस बिलीफ उस दिन ऐसा बोल रहा था, ये जैसे अगर शालिनी बोल रहा है कि वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी ने उसके ऊपर नजर दे दिया तो उसको उल्टी आ रहा है, कैसा रहेगा ये? मतलब सम पीपल दे इंटरप्रेट लाइक दिस, कि हमको नजर दे दिया तो मेरा ये कपल का इधर का जो हिस्सा है कलर का चेंज हो गया, वो उसने कुछ कर दिया तो हमारा घर का फैमिली में झगड़ा हो रहा है। ये जो कि सुपरस्टिशियस बिलीफ बोलते हैं, ठीक है, उसने कुछ कर दिया, ये लेके वो लेके, तो भाई रूल ये बोलता है आप विश्वास करोगे तो सही होगा, नहीं विश्वास करोगे तो कुछ नहीं होगा। और वही बिलीफ आपके अंदर घुस जाता है कभी कभार, ठीक है, कि हम लोग तो यार उतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह से तो परमेश्वर हम लोग को ज्ञान देता है। जब भी सुपरस्टिशियस बोलेंगे तब भी ऊपर वाले का नाम कनेक्ट रहेगा, लेकिन ठीक है, परमेश्वर हमको ज्ञान देता है। टेक्निकली देखा जाए परमेश्वर किसी को ज्ञान नहीं देता है,
तो परमेश्वर का नाम पे कितना भी कोई भी पंडित हो या चाहे मॉन्क हो या तो कोई बिशप हो, अगर बोलता है परमेश्वर हमको बहुत ज्ञान दिया है, परमेश्वर किसी को ज्ञान नहीं देता। परमेश्वर जो देता है उसको बोलते हैं बुद्धि और समझ। ज्ञान को अर्जन करना पड़ता है, ठीक है ना। ज्ञान को अर्जन करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। वरना वो सब लोग जाके वो पहाड़ के ऊपर ऐसे ही करके तपस्या करके सब किताब लिख देता है, ऐसा नहीं होता है। ये मोबाइल को जिसने बनाया बहुत रिसर्च करके बनाया है। ये चश्मा को, लेंस को जिसने बनाया बहुत रिसर्च करके, वो तपस्या करके नहीं बनाया। अब आज जो हम लोग वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत रिसर्च किया गया है। वो ऐसे करके बैठ के ऊपर से नहीं मिला है। और ये जो है ना, ये सुपरस्टिशियस बिलीफ पढ़ाई के साथ जो कनेक्शन है उसको मैं बोलूंगा, बाकी जो अलग है। हम विश्वास करते हैं ना कभी कभार कि चलो, 3 इडियट फिल्म में भी दिखाया है, कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हम लोग को पास करवा देगा। पढ़ाई करो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। पढ़ाई आपको करना पड़ेगा तभी आप पास होगे। लेकिन हम अगर सोचते हैं कि दिन रात हम लोग पूजा करेंगे और कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कभी पास नहीं करवाएगा। इंग्लिश का ही सोच लो, आप अगर क्लास नहीं आते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो कोई भी परमेश्वर आपको मदद नहीं करेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है, समझ दे रहा है, और मेरे जैसा एक टीचर भी दिया है, चलो ऊपर वाले को धन्यवाद। उसका इस्तेमाल करना है, आपको करना है, तभी ज्ञान मिलेगा, वरना ज्ञान नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश सीखना है, तीनों को समेट के बोल रहा हूँ। पहले डर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि डर, आप अगर डरते हो किसी भी चीज में तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। डर को नीचे करना पड़ेगा। इग्नोरेंस, जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इग्नोरेंस। तो उस इग्नोरेंस जिसको नकारना बोलता है, उसको आपको मतलब हटाना पड़ेगा। क्योंकि इग्नोरेंस में आप अगर रहेंगे तो पक्का बोल रहा हूँ, कभी आपको पढ़ाई में दिन नहीं लगेगा। ओके। और उसके बाद आता है सुपरस्टिशियस बिलीफ, कि ऊपर से हमारा डाउनलोड डायरेक्ट हो जाएगा। इधर कोई डाउनलोड डायरेक्ट नहीं होता है, जाके घुसाना पड़ता है चैनल को। वरना दिन रात गधा का जैसे मैं पढ़ता नहीं रहता, ठीक है। जो भी कुछ बनाता है ना, उसको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं होता जाता, ठीक है। ऑटोमेटिक जो होता है उसको चूना लगाना बोलता है, चूना लगा के जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को समझ में आया होगा। वो 9 नंबर पॉइंट का ही मैं बोल रहा था कि हमारा लाइफ में डर और इग्नोरेंस और सुपरस्टिशियस बिलीफ जो भी है, उसको साइड करना पड़ेगा, तो हमारा ब्रेन फ्रेश रहेगा। और हमारा ब्रेन अगर फ्रेश रहता है तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत चीज़ सीख पाएंगे।